Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Ismail Abbasi, and today I welcome you to this YouTube channel on behalf of Government Postgraduate College, Satellite Town, Rawalpindi. From English Department, I would like to explain to you chapter number 6, The Man Who Was a Hospital. In this chapter, when you would go through it, you will come to know that the writer Jerome K. Jerome is suffering from a slight illness and he considers himself to be ill. Therefore, he tries to explore the causes of his disease. In order to do that, he goes to British Museum and starts reading about various diseases that he comes across through a medical book. But while reading those books, he comes to know that he is suffering from each and every disease that is enlisted in that document and the book. So when he goes through, he finds he finds the symptoms that are there in the book. He seems to have them present in his body. Therefore, he considers that he is suffering from almost all the diseases that are enlisted alphabetically in that particular book. The only disease that he thinks that he is not suffering from is housemaid's knee. So, after coming out of the museum, he declares himself as a hospital because he thinks that the students who intend to attain their diplomas and degrees in medical sciences would feel honored to have him because he is suffering from all those diseases, and those students would come and would see him. They would pay him a visit and their training would be done. So later on, at the end, we see when he goes to a chemist who is a friend of his and he explains the whole story, and we see that the chemist tells him to take it easy and prescribes him some good food and daily exercises so that he could get to a normal routine. So, in the lesson, we'll see that how each and everything has been explained, the whole process, the whole experience, and the whole observation on the level of personal as well as from his experience of social life as a human being, that how he comes to know that he is suffering from various diseases. So let's start reading the text and let's try to understand various aspects of this lesson. Also, let's try to translate and read it so that we could be able to get a better idea of how the writer is explaining each and everything. It was my liver that was out of order. ये मेरा जिगर था जो out of order था. Out of order is used for the things when they are not properly functioning. जब भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर रही हो, तो हम उसके लिए आउट ऑफ ऑर्डर का वर्ड यूज़ करते हैं. आई न्यू, मैं जानता था. इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, कि ये मेरा जिगर ही है जो आउट ऑफ ऑर्डर है. बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग पेटेंट लिवर पिल सर्क्यूलर, क्योंकि मैं अभी रीड कर रहा था
अभी मैं पढ़ रहा था एक पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर इश्तिहार, लिवर पिल जिगर की गोली, और पेटेंट, पेटेंट क्या है? जस्ट लुक एट दैट वर्ड इन डिक्शनरी कि ये काइंड ऑफ एग्रीमेंट है दैट, अगर आप इस सेकंड पैराग्राफ को देखें, टुडे पेटेंट्स अलोंग विथ कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर फॉर्म ऑफ intangible property. Something intangible cannot be seen or touched. A patent is a right of ownership, usually of invention. So ये एक इन्वेंशन का ऑनरशिप है, ये एक दरियाफ्त का ऑनरशिप है कि जैसा कि अगर आप देखें तो मुख्तलिफ कंपनियों के जो इश्तिहारात होते हैं या मुख्तलिफ हकीमों और डॉक्टर्स की जो उन्होंने अपना एक इश्तिहार बनाया होता है, तो उसके ऊपर उसका प्रॉपर नेमिंग होती है, क्लिनिक का नाम दर्ज होता है, देन लेटर ऑन उनके फ़ोन नंबर्स होते हैं, उनके एड्रेसेस दर्ज होते हैं, और उसमें फिर वो वेरियस किस्म की सिम्टम्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सो ये अगर आप डिक्शनरी में या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल से पता चल जाएगा। लेट्स गो बैक टू वो लेसन के वो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि वो किस तरीके से दवाइयों का जो इश्तिहार था और वो जो सर्कुलर था वो उसके सामने आया था, तो उसको जब वो पढ़ रहा था, इन विच, जिसके अंदर वर डिटेल्ड, बयान किए गए थे बहुत तफसील से, द वेरियस सिम्टम्स, सिंबल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एम्बलम्स, बहुत सी अलामात, बाय विच अ मैन कुड टेल, कि जिसके जरिए एक इंसान बता सकता है when his liver was out of order, कि क्या क्या अलामात उसको महसूस होंगी तो उसका जो लिवर है वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। आई हैड देम ऑल, कि मेरे जिस्म के अंदर वो सारी की सारी अलामात प्रॉपर तरीके से मौजूद थी और मैं उनसे सफ़र कर रहा था। तो यहाँ पे बताने का ये मकसद है कि वो जो उसने इश्तिहार देखा, उस इश्तिहार के अंदर उसको पता चल गया कि किस तरीके से उसका जिगर जो था वो आउट ऑफ ऑर्डर था, वो ख़राब था। नेक्स्ट पैराग्राफ को अगर आप देखिए तो उसके अंदर फिर क्या बता रहा है हमें राइटर, इट इज़ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, कि एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स अनयूजुअल, वेरी स्पेशल, आउट ऑफ ऑर्डिनरी, कि जो एक आम ना हो बल्कि ख़ास हो, स्पेशल हो, बहुत ही मुख्तलिफ हो, यूनिक हो। बट आई नेवर रेड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट, कहता है मैं कभी भी नहीं पढ़ता था एक पेटेंट जो मुसद्दिका मेडिसिन दवाइयों का एडवर्टीजमेंट है, इश्तिहार है, मैं नहीं था उसको पढ़ता। विदाउट बीइंग इम्पेल्ड, कि इम्पेल ना हो जाऊं, इम्पेल्ड फोर्स, कंपेल्ड मजबूर, आमादा, वो मैं ना हो जाऊं टू द कंक्लूजन, कि इस रिजल्ट के ऊपर, इस नतीजे को अखज करने के मैं काबिल ना हो जाऊं, दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज, कि मैं उस पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र कर रहा हूं, उससे मैं, मेरा जिस्म जो है वो मुब्तला है उस डिजीज के अंदर। देयर इन डेल्ट विद इन इट्स मोस्ट वेरुलेंट फॉर्म, जो डेल्ट हो रही है, जो डील हो रही है, डील की सेकंड फॉर्म है डेल्ट, कि वो मौजूद हो रही है या मेरा जिस्म उसके साथ डील कर रहा है, इन इट्स मोस्ट वेरुलेंट फॉर्म। वेरुलेंट का अगर आप मतलब देखें तो आपके लेसन के एंड के ऊपर राइटर ने कुछ नोट्स दिए हुए हैं। ये नोट्स दिए हुए हैं, इन नोट्स को अगर आप देखेंगे तो इन नोट्स के अंदर वो वेरुलेंट का थर्ड जो है ना, जो वर्ड है वो हमें बता रहा है वेरुलेंट के मीनिंग, जिसका मतलब है पॉइजनस या जहरीला, कि वो जहरीला
किस्म का मवाद या वो जहरीली किस्म की फॉर्म वो या मोस्ट डेंजरस फॉर्म उसके जिस्म के अंदर वो मौजूद था। अगर आप वो देखेंगे तो यहाँ पे उसको पाएंगे। तो कहता है कि मेरे अंदर भी वो जो सिम्टम्स थे कि जो नताज मैंने अखज़ किए थे मेरे मुताबिक वो बहुत डेंजरस शेप में मौजूद थे। द डायग्नोसिस सीम्स in every case to correspond exactly कि वो जो डायग्नोसिस था उसका एग्जामिनेशन था उसकी तशखीस थी वो ऐसे दिख रही थी इन एवरी केस हर नतीजे में टू correspond exactly कि वो exactly correspond करे वो उससे रिलेट करे with all the sensations कि वो सारे जज्बात वो सारे एहसासात that I have ever felt कि जो मुझे कभी जिंदगी में महसूस हुए थे या जिंदगी में मैंने कभी उनसे मेरा पाला पड़ा था या मेरा उनसे कभी सामना हुआ था। तो यहाँ पर वो देखिए किस तरीके से राइटर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उसको एक एडवर्टीजमेंट की वजह से या एक सर्कुलर की वजह से उसको कितना ज्यादा टेंस होना पड़ा और उसको किस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ा, क्योंकि जब उसने देखा तो उसको महसूस हुआ कि कैसे उसका जिस्म पूरे का पूरा वो सफ़र कर रहा है उस बीमारी से। अब इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि उसके अंदर वो अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है कि आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे कि मुझे याद है मैं एक दिन ब्रिटिश म्यूजियम में गया टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट कि वो मैं ट्रीटमेंट के लिए गया जो स्लाइट एलिमेंट एलिमेंट जो है ना वो कहते हैं किस चीज़ को कहेंगे, अगर यहाँ पे आप देखें तो एलिमेंट के मतलब डिजीज के हैं बीमारी के हैं कि कहता है कि स्लाइट हल्की सी जो मुझे एलिमेंट महसूस हो रही थी बीमारी महसूस हो रही थी उसको देखने के लिए मैं वहाँ पर मौजूद हुआ जिस बीमारी का नाम क्या है हे फीवर। आई फैंसी इट वाज कि मुझे ख्याल है कि वो शायद जो है ना वो हे फीवर ही था कि मुझे मेरे माइंड के अंदर इतना आइडिया आ रहा है कि शायद वो एक बुखार था। कहता उस बुखार को मैं देखने के लिए जब मैं गया ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर तो वहाँ पर मैंने किस तरह की डिस्कवरी की, किस तरह का मुझे जो है ना वो वहाँ पे महसूस हुआ। तो हे फीवर जो है ना वो क्या होता है, वो हे फीवर हे वैसे जो है ना वो घास फूस को कहते हैं, तो यहाँ पे पोलन एलर्जी को हम कहेंगे हे फीवर कि उसको एलर्जी थी या इन्फेक्शन थी। और आपने देखा है कि आजकल खासकर यहाँ पे जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग होते हैं तो इनको इसकी जो स्प्रिंग का महीना होता है वो नॉर्मल टाइम के अंदर भी जो बाहर का मौसम होता है उनको दरख्तों से एलर्जी होती है तो उसकी वजह से उनको बहुत से उनकी बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। तो कहता है मेरा भी यहाँ पे ये ख्याल था, तखय्युल था, फैंसी तखय्युल को कहते हैं, इमेजिनेशन को कहते हैं कि मैंने ऐसे इमेजिन किया कि वो जो बीमारी मुझे थी वो हे फीवर थी। आई गॉट डाउन द बुक कहता है मैंने किताब उठाई एंड रेड ऑल आई केम टू रीड और मैंने वो सब कुछ पढ़ा दैट जो मेरे सामने आया, आई केम टू रीड जो मेरे सामने मौजूद हुआ मैं उसमें से गो थ्रू हुआ। देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट कि एक ना सोचते हुए लम्हे के अंदर आई आइडली टर्न द लीव्स, लीव्स पेजेस को बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आप देखिए जाके डिक्शनरी के अंदर देखिए तो आइडली का मतलब अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको पता हो चल जाएगा एक ही मिनट के अंदर कि आइडली के स्पेलिंग अगर आप देखिए कि IDLY। तो ये आपका जो है ना वो क्या है कि यहाँ पे अगर आप उसके मीनिंग देखें कि वो लेजीली के मीनिंग जो है ना वो आ रहे हैं। लेजीली जो है ना वो आइडल इसके लेजीली के मीनिंग शो कर रहा है। ये लास्ट वाला वर्ड अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे वो आपको क्या बता रहा है कि लैकिंग वर्थ और बेसिस, वेन, चैटर के मतलब कोई ख़ास वजह जिसकी ना हो, नॉट ऑक्यूपाइड और इम्प्लाइड, हैविंग नो एम्प्लॉयमेंट कि वो इनएक्टिव सा, लेथार्जिक सा। कहता है कि इस लेथार्जी के अंदाज में, इस इनएक्टिव होने के अंदाज में या इस सुस्त होने के अंदाज में
टर्न द लीव्स पेजेस को कहते हैं बुक्स के पेजेस, एंड बिगिन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीजेस जनरली। सो इंडोलेंटली का मतलब अगर आप जाएंगे दोबारा लेसन के एंड के नोट्स देखेंगे तो वहां पे आपको इंडोलेंटली का मतलब भी लेजी के सेंस में मिलेगा, सुस्त होने के या काहिल होने के सेंस में मिलेगा। तो कहता है कि मैंने वहां पर उन डिजीज को भी इंडोलेंटली स्टडी करना शुरू किया, बेतवज्जोही के आलम में उन सारी बीमारियों को आमतौर पे स्टडी करना शुरू किया। आई फॉरगेट, मैं भूल गया। विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, कि पहला क्या डिस्टेम्पर था, पहला क्या मसला था, पहला क्या मामला था। डिस्टेम्पर अ कंटेजियस डिजीज, के एक खतरनाक किस्म की डिजीज, बीमारी। वो कैसी बीमारी थी जिससे मैं गो थ्रू हो रहा था। तो वो कहता है कि मैं भूल गया कि मैं गया क्यों था। आई प्लंज्ड, मैंने छलांग लगाई। इनटू सम fearful, खौफनाक, devastating scourge, कि वो मैंने devastating कहते हैं बहुत ज़्यादा तबाह कुन को। तो अगर आप यहाँ पे देखिए स्कर्ज के मतलब हम जाके अगर हम डिक्शनरी में लिखेंगे तो आप डिक्शनरी को साथ साथ चूंकि ओपन रखिए जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ पे स्कर्ज के मतलब देखेंगे। चूंकि आपको नोट्स में अगर नहीं मिले तो ये स्कर्ज आपके सामने आ जाएगा। तो उसको स्कर्ज के अंदर अगर आप ये सर्च करेंगे किसी भी डिक्शनरी के अंदर, जैसा कि आपके सामने है, आई एम यूजिंग मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जो प्ले स्टोर से आपको फ्री मिल जाती है और ये ऑफलाइन वर्क भी करती है। अपने मोबाइल के अंदर, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कर्ज, स्कर्ज का मतलब क्या है। स्कर्ज का मतलब है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, अ काज ऑफ वाइड ग्रेट इन्फ्लिक्शन, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा औजार जो पनिशमेंट के लिए यूज हुआ हो या तनकीद के लिए यूज हुआ हो, ऐसा औजार कि जो आपको पेन में मुब्तला करे, जो आपको एग्नी में मुब्तला करे। तो वो कहता है कि ऐसी चीज जो मैं भूल गया क्या थी जिसने मुझे वो क्या किया था, फर्स्ट मैं उसमें गया था, जिसने मुझे इस सारी तबाही के अंदर, इस बीमारी के अंदर मुब्तला किया था। आई नो, मैं जानता हूँ। एंड बिफोर आई हैड ग्लांस्ड, और इससे पहले कि मैं उसके ऊपर नजर निगाह डालता, हाफ डाउन द लिस्ट, के पूरी लिस्ट के अंदर, ऑफ प्रीमोनेटरी सिम्टम्स, के प्रीमोनेटरी सिम्टम्स क्या होते हैं। प्रीमोनेटरी सिम्टम्स अगर आप दोबारा जाके उनको नोट्स को देखेंगे तो वहां पे आपको लेसन के एंड के ऊपर ये मिल जाएगा। प्रीमोनेटरी सिम्टम्स का मतलब है फोर वार्निंग सिम्टम्स। सिम्टम्स अलामत को कहते हैं। फोर वार्निंग, कि जिसकी आपको टाइम से पहले इत्तला मिल जाए, कि वक्त से पहले इत्तला मिल जाए, कि आपको जो पेशन गोही के सिंबल्स हैं उसकी हमें एग्जांपल दे रहा है कि वो जो प्रीमोनिटरी सिम्टम्स हैं ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। कहता है कि उसमें से मैं गो थ्रू हो रहा था और मैं हाफ डाउन द लिस्ट में से चला गया था। इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी, कि ये बात मुझको आश्कार हुई, या आई बिकेम अवेयर अबाउट दैट आई हैड फेयरली गोइड, के मेरे अंदर ये सारे मामलात मौजूद हैं। Students, here he is trying to tell us that how he was suffering from the diseases that he came to know while reading the list that was present before him. When he went through the book, he looked at the book, and after looking at the book, the various detailed symptoms that were there written on that particular book, he came to know that he was suffering, his body was suffering because of those symptoms, and he thought that he himself had all those problems and all those issues that were detailed or that were visible in detail over there in that particular book. So after reading those symptoms he came to conclusion that his body was also suffering from a disease that he came across.
So in that particular list, he half down the list, whatever he came across, he thought that he is suffering. So इन तीन पैराग्राफ को आप दोबारा अच्छे तरीके से देखिए अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होता है. We'll go through the next paragraph in the next video. So stay tuned